ہزار داستان حصہ نمبر 7۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ برہا کو کندھے سے لگائے اپنے مخصوص انداز میں وہ چلا جا رہا تھا۔ زنجیر سے لٹکی گھنٹی ٹن ٹن بول رہی تھی۔ وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا۔ اس کے باوجود زمین اس کے پیروں تلے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ جلد ہی دروازہ آ گیا۔ یہ اس بستی کی آخری حد تھی۔ یہ ایک بڑے چوڑے تنے کا درخت تھا۔ اس میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ اتنی کھلی جگہ تھی کہ ہورا جیسا قد آور شخص بآسانی تنے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر ہورا رکا۔ اس نے کاندھے پر لٹکی زنجیر اتاری۔ اس میں بندھی گھنٹی تیزی سے بجی۔ ہورا نے زنجیر گھما کر زور سے تنے پر ماری اور کڑک کر بولا، میں ہوں ہورا۔ ارے ہورا، تجھے کون نہیں جانتا، آ جا، اندر آ۔ اندر سے آواز آئی لیکن بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ ہورا تھوڑا سا سر جھکا کر تنے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا لیکن ہورا کو معلوم تھا اندر کس طرف کا راستہ ہے۔ ایک ڈھلوان راستہ تھا۔ وہ ریت پر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ روشنی میں آ گیا۔ اس کے سامنے ایک لق و دق صحرا تھا۔ وہ تیزی سے ریت پر دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ریت کا بادل اٹھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس ریت کے بادل میں گم ہو گیا۔ دیوانگ دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے ہورا کا منتظر تھا۔ اسے پرمان کا پیغام مل چکا تھا۔ پرمان نے جو ہدایات اسے بھیجی تھی اس کے مطابق اسے عمل کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہورا نظر آ گیا۔ وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا۔ اس کے باوجود زمین اس کے پیروں کے نیچے سے تیزی سے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں میں دیوانگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ برہا ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کے کاندھے سے لگی تھی۔ اس نے اسے کاندھے سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور اپنے ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا، میں ہوں ہورا۔ دیوانگ، تیرے لیے میں پرمان کی امانت لایا ہوں، اسے وصول کر۔ دیوانگ نے برہا کو اس کے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کاندھے سے لگایا اور بولا، ہورا، میں تجھے جانتا ہوں۔ میں نے پرمان کی امانت وصول کی۔ مجھے پرمان کا پیغام مل چکا ہے۔ اب تو لوٹ جا۔ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ ٹھیک ہے دیوانگ، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کاندھے سے زنجیر اتاری اور پیتل کی گھنٹی کو زور سے زمین پر مارا، ساتھ ہی نعرہ لگایا، میں ہوں ہورا۔ گھنٹی زمین پر لگتے ہی زمین سے ریت کا بادل تیزی سے اٹھا اور ہورا اس میں گم ہو گیا۔ ہورا کے جانے کے بعد دیوانگ دریا میں اتر گیا اور پوری احتیاط سے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ شام ہونے کو تھی۔ کمال رائے بیڈ پر لیٹا غزلوں کی کیسٹ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اسے احساس ہوا اس کے سرہانے کوئی آ کھڑا ہوا ہے۔ کمال رائے نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے مائرہ کو پایا۔ وہ مائرہ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مائرہ کا کمرے میں آنا کوئی حیران کن مسئلہ نہ تھا۔ وہ روشن گٹ آتی رہتی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتی کمال رائے سے ملے بغیر نہ جاتی۔ کمال رائے کو اس سے کوئی بیر تو تھا نہ۔ وہ آتی تو اس سے اچھی طرح بات کر لیا کرتا تھا۔ اوہ ہو، غزلیں سنی جا رہی ہیں، مائرہ نے مسکرا کر کہا، اس لیے میرے پاس بھی 2 کیسٹیں ہیں۔ اچھا؟ کمال رائے نے تعارفی نظروں سے مائرہ کو دیکھا اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ڈیک کی آواز کم کر دی۔ یہ آپ ہر وقت کمرے میں کیوں گھسے رہتے ہیں؟ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تنہائی پسند ہے، کمال رائے نے صاف گوئی سے کہا۔ تنہائی پسندی آہستہ آہستہ انسانوں سے دور لے جاتی ہے، وہ بولی۔ میں انسانوں سے دور رہنا ہی چاہتا ہوں۔ وہ پھر مسکرایا۔ آدم بیداری کی وجہ؟ مائرہ نے پوچھا۔ کمال رائے مزید بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، لہذا اس نے مختصر جواب دیا، آؤ باہر چلیں۔ آؤ، مائرہ نے کہا۔ حویلی سے باہر اپنی جیپ نکالیے اور مجھے میرے گوٹ تک چھوڑ کر آئیے۔ مائرہ ہنس کر بولی، اچھا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کمال رائے خلاف توقع فوراً ہی راضی ہو گیا۔
फिर वो दोनों हवेली से 5-6 किलोमीटर ही आगे आए थे कि कमाल राय ने सामने से एक ऊँट आते हुए देखा। उसने अपनी जीप की रफ्तार खासी कम कर दी। फिर जब ऊँट इसके नज़दीक से गुजरने लगा तो कमाल राय ऊँट पर बैठी औरत को देखकर चौंक गया। वो मारवी थी। वो 2 ऊँट थे। दोनों सड़क के किनारे आगे चले जा रहे थे। सड़क छोटी थी, इसलिए इन ऊँटों को देखकर कमाल राय ने अपनी जीप की रफ्तार कम की थी। जब पहला ऊँट इसकी गाड़ी के सामने से गुजरा तो उसने क़यामत ढा दी। महमल में जो औरत बैठी थी वो 100% मारवी ही थी, अगरचे उसका लिबास इलाकाई था और उसने कोहनियों तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी। कमाल राय ने मारवी को देखते ही गाड़ी को ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक मारवी का ऊँट आगे बढ़ चुका था। अब दूसरा ऊँट उसके सामने से गुजरा। इस ऊँट पर एक मर्द सवार था जिसकी दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। एक सफ़ेद चादर से उसका जिस्म ढका हुआ था। उसकी रंगत सांवली और आंखों में एक ख़ास चमक थी। ये शख्स भी उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वो शख्स वाकई जाना पहचाना था। कमाल राय को ये फ़कीर नुमा शख्स अपने आबाए कब्रिस्तान के रास्ते में मिला था। उसने कहा था, मूर्ख, कब्रिस्तान क्यों जाता है? खाली कब्रों में क्या रखा है? जाना है तो सहरा में जा। फिर वो इस तरह की बात कहकर दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। मायरा, तुमने देखा? कमाल राय ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। क्या? मायरा ने पूछा। वो पहला ऊँट, उस पर मारवी सवार है, कमाल राय ने कहा। मैंने नहीं देखा। मैंने इन्हें आम से ऊँट समझकर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मारवी भाभी कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी हैं। मायरा ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। दोनों ऊँट आहिस्ता आहिस्ता आगे चले जा रहे थे। सड़क इतनी छोटी थी कि गाड़ी बैक करने में वक्त लगता, इसलिए कमाल राय जीप से उतर गया और उन ऊँटों के पीछे दौड़ता हुआ चीखा, रुको रुको, मेरी बात सुनो। कमाल राय को अपने पीछे आता देखकर उस अलूल जलूल शख्स ने, जिसका नाम ओगड़ा नाथ था, एक अजीबोगरीब आवाज़ निकाली। इस आवाज़ के साथ ही दोनों ऊँटों ने रफ्तार पकड़ ली। कमाल राय ने जब ऊँटों को दौड़ते हुए देखा तो फौरन रुक गया। जल्दी से वापस पलटा, उछलकर अपनी जीप में जा बैठा। कोशिश करके तेजी से गाड़ी को बैक किया और स्पीड बढ़ा दी। आगे एक मोड़ था। वो दोनों ऊँट मोड़ की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बाग थे। जब जीप सड़क का मोड़ काट कर सीधी सड़क पर पहुंची तो दोनों ऊँट गायब हो चुके थे। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। कमाल राय ने मायरा की तरफ देखा। मायरा हैरतज़दा थी। कहाँ गए? दोनों ऊँट इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकते हैं? मायरा ने कहा, कहीं वो इन दरख्तों में तो गुम नहीं हो गए? मायरा, तुम सड़क के उस तरफ नज़र रखो, मैं इधर देखता हूँ। कमाल राय ने 2-2.5 किलोमीटर वापस आ गया। उसे वो दोनों ऊँट कहीं नज़र न आए। वो हैरतनाक तरीके से गायब हो गए थे। अब आगे जाना बेकार था। मायूस होकर कमाल राय ने दोबारा अपनी गाड़ी बैक की और इरशाद गोट की तरफ चल दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या था। इसने पहले ऊँट पर बहुत वाज़े तौर पर मारवी को देखा था। वो इलाकाई लिबास में ज़रूर थी, लेकिन उसका चेहरा 100% मारवी का ही था। वो शख्स भी उसे याद था जो पिछले ऊँट पर बैठा था। वो उसे कब्रिस्तान जाते हुए मिला था। क्या ये सब उसका वहम था? उसने जो कुछ देखा, मारवी की सूरत कमाल राय को तड़पा गई थी। बड़ी मुश्किल से तो उसे करार आया था, लेकिन वो चंद लम्हों में ही उनका करार छीन कर ले गई। वो एक बार फिर बेचैन हो उठा। क्या ये सब उसका वहम था? इसने जो कुछ देखा वो फरेब नज़र था? आखिर ये सब क्या था? फिर वो दोनों ऊँट इतनी तेज़ी से कहाँ गायब हो गए? वो इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। खामोश बैठा सोचता रहा, यहाँ तक कि इरशाद गोट आ गया। मारवी की सूरत कमाल राय को तड़पा गई थी। बड़ी मुश्किल से तो उसे करार आया था, लेकिन वो चंद लम्हों में उसका करार छीन कर ले गई। वो बेचैन हो गया। मारवी की मौत पर करार इसलिए भी देर से आया था कि मारवी की तहजीद और तकफीन न हो सकी थी। रोशन राय ने इसकी लाश रौली के ज़रिए जाने कहाँ फिकवा दी थी।
सांप के हमले के बाद रोशन राय ने मारवी और उसकी बच्ची की सारी कहानी सुना दी थी। फिर इसने रॉली से मारवी की लाश बाजियाब करने के लिए भी कहा था। रॉली ने उसे सहरा में तलाश किया और ढूंढता ढांढता वो उस जगह पहुंच भी गया जहां उसने मारवी की लाश दफन की थी, लेकिन अब वहां लाश ना थी। वैसे भी इतने दिन गुजर ही गए थे कि लाश का वहां होना मुमकिन ना था। क्या पता मारवी की लाश चील कौवे खा गए हों। ये बात रोशन राय भी अच्छी तरह जानता था कि मारवी की लाश अब बाजियाब न हो सकेगी। बस ऐसे ही नफीसा बेगम की तसल्ली के लिए उसने रॉली को लाश की तलाश में भेज दिया था। रॉली की लाश कैसे मिलती? रॉली को लाश तो फौरन ही हूरा उठाकर ले गया था। हूरा ने मारवी की लाश दरिया के किनारे एक मखसूस जगह पर रख दी और ख़ुद वहाँ से चला आया था। उसे इस बात से सरोकार ना था कि इस लाश को यहाँ रखने को क्यों कहा गया है। उसे जो हुक्म दिया गया उसने इसकी बजा आवरी एहसन तरीक़े से कर दी। अब उसका काम ख़त्म। दरिया के किनारे नज़दीक ही शमशान घाट था। एक ऊंची जगह बनी झोंपड़ी में ओगड़ा नाथ मौजूद था। वो आसन जमाए आंखें बंद किए ज्ञान और ध्यान में मसरूफ़ था, जबकि झोंपड़ी के बाहर मौजूद 3 साधु चर्च पीने में मगन थे। जैसे ही दरिया के किनारे लाश पहुंची, ओगड़ा नाथ की आंखें फौरन खुल गईं। उसने खुशी से नारा लगाया, आ गई, लाश आ गई। शुभ पूजा का सामान हो गया। जय काली। इसकी आवाज़ सुनकर तीनों चर्च पीते साधु अंदर घुस आए। क्या हुआ महाराज? अरे जाओ, जल्दी करो, ठिकाने पर पहुँचो। शिव पूजा का सामान आ गया। आज रात शिव पूजा होगी। ओगड़ा नाथ ने इन तीनों साधुओं को देखकर कहा। चर्च का नशा तो उन पर पहले ही सवार था। एक औरत की लाश की नवीद ने इनको नशे को दो आश्ता बना दिया। वो फौरन ही जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। दरिया के किनारे एक मखसूस जगह पर लाश मौजूद थी। एक जवान और खूबसूरत औरत की लाश देखकर ओगड़ा नाथ के तीनों चेलों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो तीनों खुशी से झूम उठे। एक चेले ने, जो इन तीनों में कद आवर और मनहूस सूरत का था, मारवी की लाश को अपने हाथों पर उठा लिया और तेज तेज कदमों से चलता झोंपड़ी में आ गया। ओगड़ा नाथ के इस चेले ने मारवी की लाश उसके कदमों में रख दी। ओगड़ा नाथ ने आंखें खोलकर लाश का जायजा लिया। वो एक खूबसूरत और नौजवान औरत की लाश देखकर खिल उठा। उसने जोर से एक नारा मस्ताना मारा, जय काली, तेरा वार कभी न जाए खाली। ओगड़ा नाथ के तीनों चेले लाश की पूजा की तैयारी में लग गए। आज की रात एक खास रात थी, अमावस की रात, अंधेरी रात। ये रात शिव पूजा के लिए बहुत मुनासिब थी। इत्तेफाक की बात कि इस रात उन्हें एक शिव भी दस्तयाब हो गया था। रात 12 बजे शिव पूजा शुरू हुई, लाश की पूजा। तीनों चेले एक नेम दायरे की सूरत में लाश के पैरों की तरफ बैठ गए। ओगड़ा नाथ सरहाने की तरफ था। इसके सामने आग रोशन थी। वो इस आग में शमशान घाट से जमा की गई अधजली लकड़ी के टुकड़ों पर कुछ पढ़कर आग में झोंक रहा था। वो तीनों चेले बारी बारी लाश पर पानी के छींटे मारते जाते और साथ ही यकतबान होकर कुछ समझ में न आने वाले अल्फाज पढ़ते जाते। कोई 2 बजे के करीब लाश में हरकत होना शुरू हुई। पहले पाँव का अंगूठा हिला, इसके बाद हाथ उठाकर फिर लाश ने अपनी बंद आंखें अचानक खोल दी। आंखें खुली देखकर ओगड़ा नाथ ने अपना अमल तेज कर दिया। वो जल्दी जल्दी लकड़ी के टुकड़े अपने सामने जलती आग में झोंकने लगा। वो तेजी से कुछ नाफहम अल्फाज भी बोलता जा रहा था। 1 घंटे तक ये अमल इसी तरह जारी रहा। ठीक 3 बजे मारवी की लाश उठकर बैठ गई। इन चारों शैतानों के चेलों ने खौफजदा होने के बजाय नाराए मस्ताना लगाया, जय काली, तेरा वार कभी न जाए खाली, और जल्दी से क्रास लाश को खाली। इन शैतानों के चेलों के ख्याल के मुताबिक मारवी की लाश में काली की रूह हलूल कर गई थी और वह इनके अमल के मुताबिक इस लाश की सफाई कर रही थी। सफाई से इनकी क्या मुराद थी, ये वही समझते थे। कोई आधे घंटे तक वो लाश बार बार उठकर बैठती रही। फिर एक वक्त आया
वो आराम से लेट गई। इसके मुंह से धुआं सा निकला, गोया लाश की सफाई की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। काली इस लाश को छोड़कर जा चुकी थी। यही वक्त था कि इस लाश में अपनी मर्जी की रूह दाखिल कर दी जाए और ये काम 4 बजे से पहल होना था। 12 बजे से 4 बजे तक शिव पूजा टाइम ख़त्म हो जाता। इससे पहले या इसके बाद ये अमल बेअसर हो जाता था। ओगड़ानाथ मालवी की लाश को देखते ही तय कर चुका था कि शिव पूजा के बाद इसमें किसकी रूह दाखिल की जाएगी। वो थी शांति। शांति इसकी मन की रानी। हाल ही में इसका इंतकाल हुआ था। वह शमशान घाट की इसी झोंपड़ी में ओगड़ानाथ के साथ रहती थी। एक रात उसे तेज बुखार हुआ, दूसरे दिन वह चल बसी। ओगड़ानाथ तन्हा रह गया। अब वो एक लाश की तलाश में था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि लाश एक जवान और खूबसूरत औरत की थी। जैसे उसे लाश दस्तयाब हुई, उसने शिव पूजा शुरू की। बिला आखिर वो लम्हा आ गया जब इस खाली जिस्म में किसी की रूह को दाखिल किया जा सकता था। ओगड़ानाथ ने बिला ताखिर रूह के हलूल करने का अमल शुरू किया। जब ये अमल शुरू हुआ तो दूर कहीं से चीखों पुकार के आवाज़ें आने लगीं, जैसे बदरूहें चीख रही हों। फिर ये आवाज़ें करीब आने लगीं। यूँ महसूस होने लगा जैसे झोंपड़ी के आसपास सैकड़ों बदरूहों ने चीखों पुकार मचा रखी हो। ओगड़ानाथ ने अब अपने हाथ में चाकू उठा लिया था। पेट्रोमैक्स की रोशनी में चाकू की चमक, तेज धार चमक खूब तेज नज़र आ रही थी। उसने हाथ आगे करके इस चाकू की नोक को आग पर रख दिया और जल्दी जल्दी नामानूस से अल्फाज बोलने लगा। इसके बाद इसने चाकू को आग से हटाया, सीधा किया। रूहों की चीखों पुकार की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। फिर इसने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ देखते हुए चाकू को रिवाल्वर की तरह ताना और बड़े पुरस्कार अंदाज में बोला, चल आजा। इसके चल आजा कहते ही जर्द रंग का एक हयूला अंदर दाखिल हुआ। वो धुआं सा था, लेकिन इस धुएं की एक शक्ल थी। गौर से देखने पर वो हयूला इंसानी शक्ल का ही महसूस होता था। ओगड़ानाथ ने इस हयूले के अंदर आते ही चाकू की नोक से मालवी के अंगूठे की तरफ इशारा करके कहा, चल घुस जा, बोल बोल जय काली, तेरा वार कभी न जाए खाली। इसी वक्त एक जनाना आवाज़ आई, जय काली, चल शाबाश जल्दी कर। ओगड़ानाथ ने बड़े प्यार से लाश की तरफ इशारा किया। फिर वो हयूला मालवी के पैरों के पास जाकर रुक गया। ओगड़ानाथ चाकू से बराबर इस धुएं को लाश में दाखिल होने का इशारा कर रहा था। साथ में बोलता भी जाता था, चल जल्दी कर, चल जल्दी कर। इतने में वो हयूला छोटा होना शुरू हुआ और छोटा होते होते गायब हो गया। यूँ महसूस हुआ जैसे वो धुआं अंगूठे के जरिए मालवी की लाश में दाखिल हो गया हो। हयूले के अंदर दाखिल होते ही ओगड़ानाथ ने वो चाकू जोर से ज़मीन में गाड़ दिया और बोला, हाँ शांति, तूने बसेरा कर लिया? चल हाँ कर लिया। मालवी के होंठ हिले, लेकिन ये मालवी की आवाज़ ना थी, कोई अजनबी आवाज़ थी। चल फिर उठकर बैठ जा, ओगड़ानाथ ने कहा। ये सुनते ही मालवी की लाश उठकर बैठ गई। अब वो मालवी ना रही थी, शांति हो गई थी। जिस्म मालवी का और रूह शांति की। देख शांति, मैंने तुझे वापस बुला लिया है, ओगड़ानाथ ने बड़े फ़ख्र से कहा। वो बहुत खुश था। हाँ ओगड़ा, मैं परेशान थी, भटक रही थी, तेरी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शांति ने खड़े होते हुए कहा, महाराज अब हमें आ गया है। इन तीनों चेलों में से एक ने झोंपड़ी से जाने की इजाज़त चाही। हाँ तुम लोग जाओ, मौज मेला करो, मैं कुछ देर में तुम्हारी झोंपड़ी में आता हूँ, ओगड़ानाथ ने कहा। अच्छा महाराज। ये कहकर ओगड़ानाथ के तीनों चेले उसकी झोंपड़ी से निकल गए। इनके जाने के बाद ओगड़ानाथ ने शांति का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यारे लहजे में बोला, मेरी शांति। इस तरह मालवी जी उठी। कमाल राय ने अगर मालवी को देखा तो गलत ना देखा था। वो उसकी नज़र का धोखा ना थी, वो वाकई मालवी थी। मालवी को देखकर कमाल राय तड़प उठा था। वो इरशाद कोर्ट में ज़्यादा देर नहीं रुका।
मायरा को छोड़कर फौरन ही वापस चला आया। मायरा ने भी उसे रोकने की कोशिश ना की थी। वो समझ गई थी कि इस वक्त उसे रोकना फजूल है। मारवी की शक्ल देखकर उसे चुप लग गई थी। वो सारे रास्ते खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। वो इस बात पर हैरान था कि वो दोनों ऊँट अचानक किस तरह गायब हो गए। वो दोनों ऊँट गायब हरगिज नहीं हुए थे। ये सब ओगलानाथ की कारस्तानी थी। जिस तरह कमाल राय ने मारवी को पहचान लिया था, वैसे ही ओगलानाथ ने भी कमाल राय को एक नज़र में पहचान लिया था। कमाल राय को ऊँटों के पीछे भागते देखकर ओगलानाथ घबरा गया। पहले तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी आवाज़ निकालकर ऊँटों को दौड़ाया। फिर जब उसने देखा कि कमाल राय गाड़ी उसके पीछे ला रहा है, तो उसने मुड़ते ही ऊँटों को रोका और उन्हें सड़क से उतार कर दरख्तों में ले गया। फिर उसने फौरी तौर पर अपने मुंह से नामानुस से अल्फाज निकाले और पीछे मुड़कर फूंक मार दी। अगरचा दोनों ऊँट सड़क के नज़दीक दरख्तों में खड़े थे, जो सड़क से साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन ओगलानाथ क्योंकि नज़रबंदी का अमल कर चुका था, इसलिए वो दोनों ऊँट कमाल राय और मायरा को नज़र न आ सके। कमाल राय ने इन ऊँटों को अच्छा खासा आगे जाकर देख आया। फिर वो मायूस होकर वापस पलटा। ओगलानाथ ने जब देखा कमाल राय वापस चला गया है, तो इसने शांति यानी मारवी से कहा, आओ शांति, घूंघट निकाल लो अब तुम। क्यों? तेरी शक्ल देखकर तेरा पति रुक गया। अगर मैं अमल ना करता तो वो तुझे अभी ले उड़ता। ओगला, तू खामखा ही डर गया। अरे उसे मेरे पास तो आने दे। मैं जब बताती कि मैं शांति हूँ तो वो खुद ही वापस चला जाता। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा हो भी सकता था, लेकिन मैंने खतरा मोल लेना मुनासिब ना समझा। चल अब अपने ऊँट को हाँक कर सड़क पर ले आ और घूंघट निकाल ले, वो बहुत दूर जा चुका है। फिर वो दोनों ऊँट दरख्तों से निकलकर सड़क पर आए और आहिस्ता रवि से अपना सफ़र तय करने लगे। दीवान दरिया के पार निकल गया। वो बुरहा को कांधे से लगाए तेजी से शुमाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कोई आधा मील चलने के बाद एक बस्ती के आसार नज़र आने लगे। कुछ देर के बाद वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। ये इस बस्ती का सबसे बड़ा और पुराना घर था। दीवांग ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद अंदर से लाठी की टक टक सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने वाली 90 बरस से क्या कम होगी। सफ़ेद साड़ी जिसके किनारे उनाबी थे, थोड़ी सी झुकी कमर, सफ़ेद बाल, भवें तक सफ़ेद, हाथों में लाठी, सांवली रंगत, चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ। 90 बरस की ज़रूर थी, लेकिन देखने में जानदार बुढ़िया थी। दरवाज़ा खोलकर वो एक तरफ हटी। उसने दीवांग के कंधे पर किसी बच्ची को देखा तो बड़ी हैरान हुई। दीवांग, ये क्या उठा लाया तू? माता, ये बुरहा है, पुरमान की अमानत, बहुत कीमती, हमें इसे अपने पास रखना है। दीवांग ने घर में दाखिल होते हुए कहा, पुरमान की अमानत है तो फिर आप ही कीमती चीज़ हुई। उस बुढ़िया ने दरवाजे को कुंडी लगाते हुए कहा, माता तुम क्या कर रही थी? दीवांग सहन पार करके कमरे में दाखिल होते हुए बोला, बच्चों को दूध देने जा रही थी। दीवांग की माँ बोली। अरुषि क्या घर में नहीं है? दीवांग की माँ बोली। अंदर है, वो कहाँ जाएगी? मैं यहाँ हूँ। एक उधेड़ उम्र की औरत फौरन ही दरवाजे में आ गई। अरुषि ले संभाले से देख, इसको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखना, दीवांग ने हिदायत की। तू फिक्र मत कर दीवांग, मैं इसे अपने दिल का टुकड़ा समझ कर रखूँगी। दीवांग ने खुश होते हुए बुरहा को उसकी गोद में दे दिया। जब अरुषि ने बुरहा के चेहरे पर नज़र डाली तो वो महबूत होकर रह गई। हाय इतनी सुंदर, वो बेख्तियार बोली। सुंदर सुंदर क्यों ना हो, ये पुरमान का इंतखाब है। दीवांग ने तारुफी नज़रों से बुरहा को देखा। अरुषि ने बुरहा का मुंह चूमा और बोली, ऐसी प्यारी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। फिर वो उसे अंदर कमरे में ले गई और होश में लाने के जतन करने लगी। दीवांग कमरे से निकल आया। इसने बाहर निकलकर देखा कि पीपल के दरख्त के नीचे 10-12 मिट्टी के प्याले रखे थे। एक छोटी बाल्टी से
دیوانگ کی ماں ان پیالوں میں دودھ ڈال رہی تھی۔ دیوانگ دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کو ایک ایک کر کے پیالوں میں دودھ ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب سارے پیالوں میں دودھ بھر گیا تو دیوانگ کی ماں پاروتی نے دودھ کی خالی بالٹی رسوئی میں جا کر رکھی، پھر واپس درخت کے نیچے آئی اور اس نے اپنی لاٹھی 3 بار زور سے زمین پر ماری اور بڑے پیار سے بولی، آؤ بچوں آؤ۔ کہنا تھا کہ مختلف جگہوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکل کر لہراتے ہوئے دودھ کے پیالوں کی طرف بڑھے اور پیالوں میں منہ ڈال کر دودھ پینے لگے۔ پاروتی ان سانپوں کو بڑی محبت سے دیکھنے لگی۔ ماروی کی ایک جھلک نے کمال رائے کے دل کی دنیا تہو بالا کر ڈالی تھی۔ وہ ماروی کو بھولا تو نہیں تھا، اب بھی جب اس کی یاد آتی تو آتی ہی چلی جاتی۔ اس کی یاد آتی تھی تو اس کا دل تڑپاتی تھی، لیکن وہ جنون کی کیفیت جو اس کی لاش دیکھ کر اس پر طاری ہوئی تھی، ویسی کیفیت اب نہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ زندگی کی طرف لوٹتے لوٹتے زندگی کے ایک موڑ پر اچانک اسے اپنی زندگی دکھائی دے گئی۔ اس کا منتشر ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ وہ دوسرے دن گھوڑے پر حویلی سے نکلا۔ اسے گھڑ سواری کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ وہ گھوڑے پر اس لیے نکلا تھا کہ شاید ماروی پھر سے کہیں دکھائی دے جائے تو وہ گھوڑے پر اس کا بآسانی تعاقب کر سکے گا۔ اس مرتبہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے گا۔ ماروی سے ملاقات کی آس میں اس نے میلوں لمبا چکر کاٹا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ مایوس ہو کر حویلی لوٹ آیا اور بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ نفیسہ بیگم نے جب حسب معمول اس کے کمرے کا چکر لگایا تو کمال رائے کے کمرے میں اندھیرا پایا۔ اس نے اندر آ کر لائٹ جلائی اور تو کمال رائے کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ اسے بیڈ پر اس طرح لیٹا دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی۔ کمال بیٹے کیا ہوا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ماں، کمال رائے کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ کمال رائے کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے جو دیکھا تو فوراً بولی، تم رو رہے ہو؟ نہیں تو ماں، کمال نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ اب ماں سے اپنے آنسو بھی چھپائے گا کیا؟ نفیسہ بیگم اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں ماں، تم سے میرا کیا چھپا ہے؟ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ کمال رائے اپنی ماں کے بہت قریب تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات جب تک اپنی ماں سے نہ کر لیتا چین سے نہ بیٹھتا تھا۔ پھر یہ آنسو کیوں چھپائے؟ نفیسہ کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ماں، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میرا دل بے چین ہے، اسے کسی طور قرار نہیں۔ میں تیرے دل کا قرار واپس لاؤں گی، تو بات تو کر۔ ماں، میں نے کل ارشاد کوٹ جاتے ہوئے راستے میں ماروی کو دیکھا۔ کمال رائے نے انکشاف کیا۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ نفیسہ بیگم سناٹے میں آ گئیں۔ وہ فکر مند ہو گئی کہ کمال رائے مشکل سے تو ٹھیک ہوا تھا، بڑے جتنوں سے زندگی کی طرف واپس آیا تھا۔ اب اس نے پھر سے ماروی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا، جانے اس نے کس کو دیکھ لیا تھا۔ کمال بیٹے، کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماں نے پریشان ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں ماں، میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں یقین نہیں آیا نا؟ اسی لیے ماں میں نے تمہیں ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن بیٹے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ وہ مر چکی ہے، تم نے اس کی لاش دیکھی تھی نا؟ ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا۔ ذرا تفصیل سے مجھے ساری بات سمجھاؤ، نفیسہ بیگم بولی۔ کمال رائے نے کل شام کا پورا واقعہ تفصیل سے ماں کے گوش گزار کر دیا۔ ماروی کی کوئی ہم شکل ہوگی، نفیسہ بیگم نے سارا قصہ سن کر اظہار خیال کیا۔ نہیں ماں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میرا دل فریب نہیں کھا سکتا۔ وہ 100% ماروی ہی تھی، وہ اسی لیے غائب ہو گئی، اگر وہ ماروی نہ ہوتی تو ہرگز غائب نہ ہوتی۔ بیٹے کمال، میری جان، میں نے اس سلسلے میں خود رولی سے بات کی تھی۔ وہ ماروی کو کہیں صحرا میں ریت میں دبا کر آیا تھا، پھر تیرے بابا کے حکم پر اسے بازیاب کرنے کے لیے بھی نکلا تھا، لیکن ماروی کی لاش اسے
मुकर्ररा जगह पर नहीं मिली। जाहिर है इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद उसका वहाँ मिलना नामुमकिनात में से था। लाश बेशक नहीं मिली, लेकिन तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो मर चुकी है, नफीसा बेगम ने उसे समझाया। पता नहीं माँ, कमाल राय ने बेयकीनी की कैफियत में कहा। जाने क्यों करार नहीं आता। कमाल मेरे बेटे, वसवसों में ना पड़, यकीन कर ले मारवी मर चुकी है और यही बात तेरे हक में बेहतर है। मेरी जान, मुझे डर है कहीं तू फिर बीमार ना हो जाए। नहीं माँ, तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ, मारवी की याद से दस्तबरदार नहीं होऊंगा मैं उसकी तलाश में रहूँगा। मैं उसे आज भी तलाश करके आया हूँ। उफ मेरे खुदाया। नफीसा बेगम ने एक ठंडी सांस ली, फिर वो उसका चेहरा देखती रही। कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, तुझे मायरा कैसी लगती है? इस वक्त मायरा का क्या जिक्र माँ? कमाल राय ने बेनियादी से कहा। वो मारवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, नफीसा बेगम बोली। होगी, कमाल राय ने इख्तलाफ करना मुनासिब न समझा। मैं सोच रही हूँ माँ, जो सोच रही हो उसे सोचती रहो, इस बात को ज़बान पर मत लाओ। कमाल राय ने अपनी माँ की बात काट दी। कमाल बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें इस तरह भटकता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें मेरी बात मानना ही होगी, नफीसा बेगम ने कहा। माँ, मुझे सुकून से रहने दो। कमाल राय ने नफीसा बेगम की तरफ दुखी नज़र से देखते हुए कहा। हाँ बेटे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम सुकून से रहो। नफीसा बेगम उसके बेड से उठ गईं।